A very good morning class. Today we are going to start a new unit 10, coming home to Delhi. Before starting this unit, I just want to clear few points regarding your syllabus to you. Okay, listen carefully. Just watch this slide. So class, omit lesson. Here you can see lesson number 8, 9, 11 and then 12 are omit. Okay, and two poem, My Native Land and Marshlands, both poems are omit. So we don't need to read and do question answer and further for these chapters and also of this poem. So up to lesson number 6, Gogol's first day we have done, question answer already we have done, and remaining poem we will complete soon. And lesson number 10 today we are starting, we are proceeding this chapter, unit 10, coming home to Delhi. Okay, so these chapters are omit, just keep into your mind. Okay, thank you. Okay, let's start the lesson. In this lesson the author is coming to Delhi from her grandfather's house from hill station, and this is night time when she along with her parents returning to her hometown. Okay, home Delhi. Para 1. It is probably at dawn and dusk that Delhi offers the most beautiful part of itself. I remember as a child going away from Delhi at my grandfather's house on holiday to hill station. When we returned, it was always a night journey by train. My mother would shake us awake us as we neared the Yamuna river. She is telling now that she is returning to Delhi from her grandfather's house and the time is night, okay, and the time is about dawn and dusk. What do you mean by dawn and dusk? The time just before sunrise and the time just after sunset. Okay, it is called डाउन एंड डस्क. तो वो समय है और इनकी मम्मी इनको उस टाइम में जगा देती हैं जब यमुना रिवर पास आने वाली होती है, अदरवाइज ट्रेन में ये लोग बच्चे जो हैं वो सो रहे होते हैं. दिल्ली ले जस्ट बियॉन्ड इट, और यमुना रिवर के आने का मतलब ही यही है कि दिल्ली जो है अब आ गई है, दिल्ली जो है इस बार ही है. फ्लॉक्स ऑफ स्क्वैकिंग मैनाज एंड पैरट्स would be circling the pink sky as the steam train travelled towards Delhi, and soon it was time for the morning tea. सुबह सुबह का बिल्कुल प्रातकालीन का टाइम है. चिड़िया, मैना, तोते ये चहचहा रहे हैं, चिरपिंग कर रहे हैं, बर्ड्स आर चिरपिंग ऑल ओवर. पिंक कलर का स्काई है, ऑब्वियसली स्टार्टिंग है डे का, तो सन जो है अभी राइज हो रहा है. बिल्कुल हल्की हल्की सी गुलाबी सी सुबह है सब तरफ, और ये सुबह का टाइम है जिसको हम कहते हैं टी टाइम, मॉर्निंग टाइम है सुबह सुबह. तो दिल्ली वाले जाग रहे हैं धीरे धीरे. टी वॉज अ सिंपल अफेयर बॉट फ्रॉम वेंडर्स हु मार्च्ड अप एंड डाउन द ट्रेन विद अ लार्ज केटल chanting hot tea means when you are on a journey like the author is, तो चाय वाले जो आते हैं उनका ये रोज़ का काम है कि वो ट्रेन में आएंगे और चाय गरम चिल्लाते हुए सबको टी, इफ़ कोई परचेज़ करना चाहता है, इफ़ दे वांट टू बाय देन दे मे, तो वो उनको देते हैं. इट वॉज सर्व्ड इन अ टेराकोटा कप दैट एडिड टू द शुगरी मिल्की टी अ डिलीशियस फ्लेवर ऑफ देयर ऑन, एंड द टी इज सर्व्ड इन अ टेराकोटा कप. इफ़ आपको भी पता हो, टेराकोटा कप मीन्स अ कप मेड अप ऑफ क्ले बैग्ड एंड देन बैग्ड. मिट्टी के जो कुल्हड़ जिसे हम बोलते हैं वो कप, और फिर उनको बैग करा जाता है भट्टी में, तो उसमें जो चाय दी जाती है उसका फ्लेवर बहुत डिफरेंट होता है. अक्सर उसी टाइप की कटोरी में खीर भी बनाई जाती है, खीर भी रखी जाती है जिसे शकोरी बोलते हैं. तो ये सब मिट्टी के होते हैं एंड दिस कॉल्ड टेराकोटा. ओके, मेड ऑफ क्ले एंड बेक्ड इन फायर. वो जो बर्तन होते हैं वो टेराकोटा कहलाते हैं. टेराकोटा पेंटिंग्स भी होती हैं कुछ. ओके, एज सुन एज वी हैड आवर टी, माई मदर वुड पुल आउट her purse and take from it a generous amount of coins. This was a sign that the train was about to go over the Yamuna bridge. जब हम अपनी चाय फिनिश कर लेते हैं तो मेरी मम्मा अपने पर्स में देखती हैं और पर्स में से क्या निकालती हैं, वो अच्छे खासे कुछ कॉइन्स निकालती हैं. और वो कॉइन्स जो है वो किसके लिए हैं,
वो कॉइन्स बच्चों को देने के लिए हैं। और पर्स खोलने का मतलब और कॉइन निकालने का मतलब सीधा यही है कि अब जो ट्रेन है वो यमुना रिवर के ऊपर से अब गुजरेगी। सो लेट्स सी व्हाई दिस कॉइन्स हैव बीन गिवन टू देम। Each child armed with a handful of coins would choose a position by a window. We would take one coin at a time and hurl it on to the holy current of the Yamuna. If the coin hit the water, our mother told us, we would be blessed. If it hit a washerman beating clothes on a sandy island or the bridge, then no blessing could be expected. So, we would try to get our blessings as quickly as possible because the approaching city called for our full attention. It means it is, we can say it's a myth. A myth कि हम कॉइन जो है, सिक्के जो हैं, वो बच्चे जो हैं एक अपनी पोजीशन ले लेते थे। जैसे उनको कॉइन मिलते हैं ट्रेन में, विंडो के पास अलग अलग पोजीशन पे वो खड़े हो जाते, अपना सिक्का लेते, हर्ल यानी उछालते हुए उसको नीचे फेंकते। अगर वो सिक्का पानी में सीधा जाता तो उनकी मम्मी उनको बोलती कि ठीक है, आपके साथ में ईश्वर की ब्लेसिंग्स है, ओके। एंड इफ़ अगर गलती से आपका कॉइन किसी वहाँ पर कोई वॉशरमैन है, कोई कपड़े धोने वाला है, धोबीन है, और वो कपड़े धो रहे हैं वहाँ पर, उनकी कमर पे, उनकी कहीं पर लग जाता है, या फिर किसी और जगह चला जाता है, मिट्टी में चला जाता है, या पुल के साइड कहीं चला जाता है, तो नो ब्लेसिंग्स। तो योर कॉइन मस्ट टच थ्रू वाटर, करंट ऑफ वाटर वेव को छूना चाहिए। ये एक मिथ थी जिसको इनकी मम्मी और ये बच्चे ये फॉलो करते थे, और इनको बहुत जल्दी रहती थी इस सब के होने की, क्योंकि इनको पता था कि आगे बस हमारी जो सिटी है दिल्ली, मेन दिल्ली सिटी, वो स्टार्ट होने वाली है। विद द सन रेनिंग गोल्ड ऑन इट। सन रेनिंग गोल्ड मीन्स सन बारिश कर रहा है गोल्डन। इट डजंट मीन सन बारिश कर रहा है, इट मीन सन की जो रोशनी है, जो उसकी रेज हैं, वो गोल्डन कलर का लाइट जो है वो फोकस दे रही हैं। द डोम्स एंड मिनरेट्स जो होती हैं वो मीनारें होती हैं, और डोम्स जो गुंबद होते हैं मस्जिद के, मंदिर के और गिरजाघर के, और मीनारें होती हैं जैसे कि कुतुब मीनार, ऐसे। तो ये इसके ऊपर एक चमक को डाल रहे हैं। द 17th सेंचुरी मुगल कैपिटल लुक्ड लाइक दे माइट बी इन अ मिनिएचर पेंटिंग। और वो नज़ारा इतना प्यारा होता है, ऐसा लगता है जैसे कि जो 17th सेंचुरी की मुगल कैपिटल दिल्ली जो है वो मुग़ल का कैपिटल रही है। और दिल्ली में बहुत सारे, आपको पता है, मुग़ल मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे कि रेड फोर्ट है, जामा मस्जिद है, और पुराना किला जिसे कहते हैं वो है, बहुत भी कुछ है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं उसके लिए बोला गया है। और ऐसा लगता है जैसे कोई मिनिएचर पेंटिंग है, कोई छोटी सी पेंटिंग हो, ऐसा सीन होता है। बड़ी बड़ी सी मीनारें खड़ी हों, उस पर सूरज की रोशनी है, वो बहुत ही नाइस सीन होता है, अर्ली मॉर्निंग वाला। ओके, पैरा 3। दिस वॉज माई सिटी, द सिटी वेयर आई वॉज बॉर्न एंड द सिटी ऑफ माई एंसेस्टर्स। ये वो सिटी है जहाँ मेरा जन्म हुआ, जहाँ मेरे पूर्वजों का जन्म हुआ। माई हार्ट इनवेरिएबली स्किप्ड अ बीट। इनवेरिएबली स्किप्ड अ बीट मीन्स हार्ट ऑलवेज सीम टू स्टॉप फॉर अ मोमेंट बिकॉज ऑफ अ सडन इमोशन। जैसे दिल धड़कना ही एकदम से बंद कर देता हो। बहुत अच्छा लगता है इनको दिल्ली। व्हेन आई सॉ इट, जब भी मैं दिल्ली को देखती हूँ, मुझे एक अलग ही बात, अलग ही पता नहीं क्या होता है, जैसे मेरा दिल जो है वो एकदम धड़कना बंद कर दिया है। मैं बहुत प्रेम करती हूँ दिल्ली से। दिस इज़ फीलिंग्स बाय ऑथर। दिल्ली, इंडियाज़ कैपिटल सिटी, इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी दिल्लीज। दिल्ली, जिसको हम कैपिटल सिटी के नाम से इंडिया की जानते हैं, ऑब्वियसली इंडियाज़ कैपिटल इज़ दिल्ली। सो जो कि कॉम्बिनेशन है मैनी दिल्लीज़ का। दहलीज़ जो बोलते हैं वो बोलते हैं अलग अलग दरों का, दरवाज़ों का। फॉर द लास्ट थाउजेंड्स ईयर एज रूलर्स रिप्लेस्ड ईच अदर, वन दिल्ली वॉज torn डाउन टू बिल्ड अनदर, ऑफन विद द स्टोन्स ऑफ इट्स फॉर्मर इटसेल्फ। जैसे एक बिल्डिंग होती है ना, एक बिल्डिंग को तोड़ा जाता है, फिर उन्हीं पत्थरों को यूज़ करके तो उसी बिल्डिंग को दोबारा से कुछ नई बदलाव के साथ दोबारा खड़ा करा जाता है। 20 साल बाद जब जनरेशन चेंज हो जाती है, 20 साल बाद, तो नई जनरेशन अपने हिसाब से उस मकान को फिर से बनवाती है। नया जो ट्रेंड चल रहा है, नए जो मकान बन रहे हैं, आपके आसपास भी ऐसा होता है। हम अपने दादा दादी का बहुत पुराना घर, जो बहुत कदीमी जिसे कहते हैं, बहुत पुराना, उसको वापस से तोड़वाते हैं और नए सिरे से दोबारा उसको कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। इन द सेम वे दिल्ली, जो कि एक
शहर है जो कितने सारे राजाओं के द्वारा कई बार जीता गया, कई बार बैटल्स हुई और उसमें कभी ये कोई दूसरा राजा रूल कर रहा है, देन न्यू राजा आया उसको रूल करने के लिए। तो अपने अपने हिसाब से सब ने इस शहर में अलग अलग चेंजेस किए, परिवर्तन लेकर आए। तो ये इसी के लिए कह रही हैं, ऑफन विद द स्टोन्स ऑफ इट्स फॉर्मर। One of Delhi's conqueror in the last millennium, the Mughals were known for their great wealth and taste। और दिल्ली के जो वंश जो जिन्होंने दिल्ली को जीता उसमें सबसे ज़्यादा जो एक जिन्होंने बहुत लंबा एक राज करा, 1000 ईयर्स तक एक राज करा, उनमें मुग़ल्स, जब भी आप भी जानते होंगे मुग़ल्स, उनका बहुत बड़ा नाम है। और वो अपने ग्रेट वेल्थ, अपने बहुत ज़्यादा धन और टेस्ट, और उनका जो टेस्ट था, चाहे वो टेस्ट उनका खाने पीने को लेकर हो, चाहे वो उनकी रॉयल्टी हो, उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन हो और वे ऑफ लिविंग है, या वे ऑफ ड्रेसिंग सेंस, उनका जो ड्रेसिंग सेंस है वो सब की अगर बात करी जाए वो काफ़ी रॉयल है। आज भी बहुत बड़े बड़े ऐसे ख़ानदान हैं, बहुत बड़े, जिनकी रॉयलिटी के लिए वो फेमस हैं। तो जयपुर में अगर आप जाएंगे तो आप जयपुर में देखते हैं कुछ ऐसे महल, कुछ इस टाइप की चीज़ें जिसमें आपको वहाँ जाके बड़े बड़े महाराजाओं की पोर्ट्रेट, उनकी फ़ोटोज़ वगैरह देखने को मिलती हैं कि वो कितने रॉयल थे, उनके रहने का जो तरीका था वो कितना डिफरेंट था, मतलब उनकी शौक ही बहुत डिफरेंट थे। दे बिल्ड 2 cities ऑफ विच शाहजहानाबाद नाउ कॉल्ड द ओल्ड सिटी। और उन्होंने जो सिटी बनवाई उसमें शाहजहानाबाद थी, जिसे हम ओल्ड सिटी के नाम से जानते हैं, बिकेम फेमस थ्रू आउट द एंशियंट वर्ल्ड एज द सीट ऑफ द ग्रैंड मुगल कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस। और ये जो जगह है जानी जाती है आज भी कि प्लेस फ्रॉम विच द मुगल एम्परर कम, मुगल एम्परर जहाँ से आए। द रूलिंग क्लास ऑफ मुगल दिल्ली हैड कम टू इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड पर्शिया। और पर्शिया अगर आप जानते हो ईरान को कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मुगल एम्परर ईरान से आए हैं और ईरान से आने के बाद वो दिल्ली में आके बसे और वहाँ पर जो शाहजहानाबाद सिटी थी वहाँ से वो बिलोंग्स करते हैं। ये चैप्टर हम आगे प्रोसीड करेंगे कल। सो योर होमवर्क फॉर टुडे इज़ डू वर्कशॉप ऑफ पेज नंबर 105 and 106. Okay class, have a good day, take care, bye.